ہم شاید GDP میں بھی گروتھ میں بھی مائنس سائڈ پہ چلے گئے ہیں۔ بہرحال پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر اقتصادی حالات آپ کے بہتر نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے روپی کو اسٹرانگ نہیں کریں گے تب تک ہماری نہ مہنگائی کم ہوگی نہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا۔ سر اس وقت جو صورت حال ہے مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہی ہیں۔ ہمیں اکانومی کو نمبر 1 پریورٹی پہ رکھنا ہوگا، کیونکہ اس ملک کا غریب آدمی اس انفلیشن کے ریٹ میں ان حالات میں اس کا گزر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں گورنمنٹ ہماری پرپوزلز کو اور سجیشن کو غور کرے گی تاکہ یہ معاشی بحران سے ہم نکل سکیں۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ کا اسلام سے شہر البانی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز۔ موجود اس وقت چیمبر آف کامرس لاہور میں، جہاں پر جو ہے آج یہاں پر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا اور چیمبر آف کامرس کی جانب سے جو ہے یہاں پر نائب صدر منتخب کیا گیا ہے انجم نثار صاحب کو۔ اس حوالے سے آج میٹنگ کا مقصد کیا تھا اور آنے والے دنوں میں جو ہے کیا ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہیں، آئیے ہم چیمبر آف کامرس لاہور کی جو مختلف پرسنالٹیز ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ نائب صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں انجم نثار صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے سر آپ کو مبارک ہو کہ آپ یہاں پر کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ جناب۔ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور چیمبر کے ہم پروڈکٹ ہیں، یہیں سے نکلے، یہاں ہی صدر بنے، فیڈریشن میں الحمدللہ گئے، اسی کی وجہ سے پہچان وہاں بھی ملی، وہاں بھی صدارت کی، آج اللہ نے نائب صدر سارکا بنایا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کریں تاکہ ملک میں جو وہاں جو بہتر کام ہو رہے ہیں اس خطے میں تو وہ یہاں بھی اڈاپٹ کیے جائیں، جس میں کوئی ٹیکنالوجی ہے، جس میں کوئی بہتری انڈسٹری ہے یا انٹرنیشنل کچھ پالیسیز ہیں۔ ریجنل ٹریڈ سے ساری دنیا نے اپنی شناخت بنائی ہے، تو کوشش کریں گے کہ ریجنل ٹریڈ کو پروموٹ کریں، جس طرح EU کنٹریز نے، ASEAN نے، NAFTA نے ریجنل ٹریڈ کو پروموٹ کیا ہے اور اپنی جو بہت بڑی GDP کا حصہ جو ہے اس کو انہوں نے آپس میں باہمی ٹریڈ کے ساتھ لنک کیا ہے۔ اس طرح ہم بھی کوشش کریں گے یہ سارک ملک جو ہے یہ انفیکٹو ہے، اس پلیٹ فارم کو بھی افیکٹو کریں تاکہ ملک کی ایگریکلچر ہو، ٹورزم ہو، انڈسٹری ہو، انوائرمنٹ ہے، انرجی ہے اور ٹریڈ ہے، ان شعبوں میں بہتری لائی جا سر رہی ہے۔ اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے اور پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ آپس میں لڑ رہی ہے، اس حوالے سے بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بھی کافی پریشان ہے، عام آدمی بھی پریشان ہے، کیا کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ کیا کہہ سکتا ہوں جی، میرا مطلب اس وقت سوائے دکھ کے اظہار کیا جا سکتا ہے۔ ریجن میں جتنے بھی ملک ہیں وہ 6 سے 7% ان کی GDP گروتھ ہے، جس میں انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے اور ہم شاید GDP میں بھی گروتھ میں بھی مائنس سائڈ پہ چلے گئے ہیں۔ بہرحال پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر اقتصادی حالات آپ کے بہتر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کرے ملک میں اسٹیبلٹی آئے اور معاملات جو ہے آگے چلیں، ادروائز اگر یہ جو سلسلہ جس طرح چل رہا ہے، جتنی انفلیشن اور جتنے آپ کے روپیہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے، اگر یہی ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو حالات مزید خراب ہوں گے، انفلیشن مزید بڑھے گی اور روپے کی قدر اور انٹرنیشنلی ہماری شناخت جو ہے وہ مزید کمزور ہوگی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آج کی جو میٹنگ تھی اس کا کیا مقصد تھا اور آنے والے دنوں کے لیے کیا لائحہ عمل؟ آج انجم نثار صاحب جی آئے ہیں لاہور چیمبر میں اور ان کو ماشاءاللہ ساک چیمبر آف کامرس کی نائب صدارت اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ان کو، اور یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ وہ ہمارے فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں، فیڈریشن کے فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں اور الٹیمیٹلی ایک ایسے شخص ہیں جو جانتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے کیا ایشوز ہیں، اور جب ہم آپس میں ریجن میں اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ اپنی تجارت کو امپروو کریں گے تو یہ تمام اکانومیز کے لیے بھی بہتر ہے اور انڈسٹری کے لیے بھی بہتر ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ کافی پریشان ہیں، اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیں الٹیمیٹلی بجٹ آ رہا ہے اور جب تک ہم اپنے روپی کو اسٹرانگ نہیں کریں گے تب تک ہماری نہ مہنگائی کم ہوگی نہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا اور نہ ہی لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی، تو ہمیں اپنے روپے
को मजबूत करना है, डॉलर्स को मुल्क में मंगवाना है। जैसे मर्ज़ी शॉर्ट टर्म पॉलिसी को इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट डॉलर्स को मुल्क में लाने के लिए अपनी तरजीहात को करे। मौजूदा जो सियासी सूरत है इस हवाले से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक रहनुमा होने की हैसियत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब तक आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी। शेख इरफान इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर जो आज की मीटिंग थी, इस मीटिंग का मकसद क्या था और इस हवाले से क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और उनके प्रेसिडेंट साहब का, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का और वीपी का, कि उन्होंने आज एक हमें यहाँ पे मदऊ किया। हम गए हुए थे बांग्लादेश में हमारे मियाँ अंजुम निसार साहब को उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जो है ना नामज़द किया है सार्क के लिए, और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए हमारे लिए बड़ी खुशहाल बात है। सर इस वक्त जो सूरत हाल है, महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है वो आपस में लड़ रही हैं। इस सूरत हाल में बिजनेस कम्युनिटी जो है काफ़ी परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बिल्कुल पहली बात यही की है मैंने कि हमें पॉलिटिक्स को नंबर 1 प्रायोरिटी से निकालना होगा, हमें इकॉनमी को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना होगा, क्योंकि इस मुल्क का गरीब आदमी इस इन्फ्लेशन के रेट में, इस इन हालात में उसका गुजर करना बहुत मुश्किल हो गया है। 300 रुपये से ऊपर डॉलर कर गया। 5 साल पहले 105 रुपये था, अब ये अपना 300 रुपये से भी ऊपर गुजर गया है। तो मैं समझता हूँ ये हमारी लम्हा फ़िक्री है, एक इन्फ्लेशन का तूफ़ान है। कैसे अपना गरीब आदमी अपना गुजारा कर सकेगा? तो इसके ऊपर बहुत वर्किंग ज़रूरत है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि पॉलिटिक्स वगैरह के इसको छोड़ के इकॉनमी को प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखें, ताकि मुल्क बेहतरी की तरफ जा सके। पेश होने के भी दिन बहुत नज़दीक हैं, क्या लगता है बजट जो पेश होगा वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए कितना फ़ायदा? देखें जी, हमारी डॉक्टर साहब के साथ एक मीटिंग हुई थी। डॉक्टर साहब ने हमें यकीनदानी कराई है कि इस बजट में वो कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, कोई एक्स्ट्रा टैक्स को नहीं लगाएंगे, ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। पहले ही अवाम पिछे हुए हैं, बिज़नेस के हालात अच्छे नहीं हैं, ऊपर से डिवैल्यूशन रुक नहीं रही। नंबर 2, FDI हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हमारा काइबर रेट 21% को टच कर चुका है और हमारा बिजली के रेट तकरीबन 52 रुपये से ऊपर अपना पर यूनिट चला गया है, जबकि हमसाया ममालिक में तकरीबन कोई 25 से 30 रुपये के दरमियान है। मैं समझता हूँ कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हम अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर नहीं कर सकते जब तक इन चीज़ों को कंट्रोल ना किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर के जो है नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है और महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इस सूरत हाल में बिजनेस कम्युनिटी पर कितना असर? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि रुपये की कदर गिनती जा रही है और डॉलर परवान पर चलता जा रहा है। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए जो इस आने वाले बजट में जो इंडस्ट्री और ट्रेडर्स जो चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, जो आसमान पे छूते हुए बिजली के जो नर्ख हैं, गैस के नर्ख हैं, उसे वापस लिया जाए। उसके बाद एक MDI फिक्स टैक्स जो इंडस्ट्री के ऊपर लगा, आपकी इंडस्ट्री चले या ना चले, वो इजाफी हो जाए। फिर उसके बाद हम ये चाहते हैं कि ओरिजिनल स्टेक होल्डर्स को आप हमारे साथ बैठे। हम ये जितना कर्जा है, ये कर्जा नहीं है, ये इंडस्ट्री और सनतकार ताजर सारे मिल के इस कर्जे को हम ओवरकम कर सकते हैं और इस माशी मसाइल से निकल सकते हैं। ग्लोबली क्रंच है, मामला ये बजा है, पर ये नहीं है कि ये गयूर कौम है। इंशाअल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त में हम बाहर निकल आएंगे, बशर्ते गवर्नमेंट हमारी भेजी हुई प्रपोजल्स को, सोल्यूशन को फिजिकली इम्प्लीमेंट करे। कौन सी हुकूमत का जो है टाइम जो है वो आपके लिए अच्छा साबित हुआ बिजनेस कम्युनिटी? देखिए जी, हुकूमतें जो भी आती, जो हुकूमत सनतकार और ताजरों के लिए बेहतर हो, उनकी पॉलिसी मईशत दोस्त हो, वो सारी हुकूमतें बेहतर हैं जी। सर इस वक्त की जो सूरत हाल है, नई बजट भी आने वाला है, आपको क्या लगता है ये बजट आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? देखिए जी, हमने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गवर्नमेंट को हर सेक्टर से, हमारे 32,000 मेंबर, हमने हर सेक्टर से, इंडस्ट्री से, IT से, टेक्सटाइल से, फार्मास्यूटिकल से, हर सेक्टर से हमने लिए। इसी तरह ताजरों के मसाइल भी हमने उसकी सोल्यूशंस और प्रपोजल्स हमने भेजी। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी प्रपोजल्स को और सजेशन को गौर करेगी, ताकि ये माशी बुरान से हम निकल सके। अभी जो आपके नए नायब सदर मुनक़िद हुए हैं,
लाहौर नायब सदर साख चैम्बर के जो मुंतखब मियां अंजुम निसार साहब, वो हमारे लीडर हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए सर्व किया और इनके माशी मसाइल और उनके मसाइल को गवर्नमेंट के साथ हमेशा उठाते रहें। इंशाअल्लाह ताला इनको पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम बिज़नेस कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको और कामयाबी दे और ये बिज़नेस कम्युनिटी के लिए काम करते रहें। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, आज कल जो आपकी मीटिंग थी और अभी सीनियर नायब सदर मुंतखब हुए हैं, इन हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मियां अंजुम निसार साहब बिज़नेस कम्युनिटी के हर दिल अजीज़ लीडर हैं, पेशावर से कराची तक, और उनका 27 साल का ये बिज़नेस पॉलिटिक्स का सफ़र है, जिसमें उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जिस महाज पे भी खड़े हुए उस महाज में कामयाबियाँ समेटी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा हसन अख्तर मेरा नाम है और मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। और आज का जो ये फंक्शन है, ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो हमारे साबिक सदर हैं मियां अंजुम निसार, वो सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर वो आज वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो उनके एज़ाज़ में उनको मुबारकबाद देने के लिए तमाम लाहौर से, तमाम मार्केटों से ताजर बरादरी इकट्ठी हुई है। और हम आज इसलिए भी खुश हैं कि मलक इफ्तिखार साहब के बाद वो सिलसिला जो है पाकिस्तान के सर पर जो एक ताज रखा जाता था, वो सिलसिला बंद नहीं हुआ, वो सिलसिला जो है वो मुसलसल चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से कि ये आइंदा आने रहती दुनिया तक ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। और पूरे पाकिस्तान के जितने भी चैम्बर्स हैं उनमें लाहौर चैम्बर को ये एज़ाज़ हासिल हुआ है कि सार्क की रहनुमाई, सार्क की लीडरशिप के लिए हमेशा लाहौर चैम्बर से ही बंदा इलेक्ट होके गया है। ऐसा बताइएगा कि आने वाले दिनों में बिज़नेस कम्युनिटी के लिए हुकूमत पाकिस्तान जो है क्या पॉलिसियाँ बनाने जा रही है? हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ताजरों के लिए उसने पॉलिसियाँ क्या बनानी हैं। हुकूमत पाकिस्तान इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो अपना बजट इंडिपेंडेंट पेश कर सके। लामहला हुकूमत पाकिस्तान को IMF की तरफ देखना पड़ता है और उन लोगों की तरफ देखना पड़ता है जिनसे उसने कर्ज़ा उठाया हुआ है। तो एज सच वो जो भी बजट बनाएंगे, जो भी पॉलिसी बनाएंगे, वो यकीनन ताजर दोस्त पॉलिसी नहीं होगी। वो सनतकारी के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट पैदा नहीं करेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये हुकूमत की भी मजबूरी है कि पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ़ अदवार में बेतहाशा कर्ज़ा उठाता रहे और वो आज कर्ज़ों के इतने बोझ तले दब चुका है कि वो उसको उस कर्ज़े पर जो सूद अदा किया जाता है वो सूद अदा करना भी उसके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। वेलकम सर।